हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस से क्लैट कंसेप्ट्स के सेशंस के अंदर। दिस इज पॉसिबली आवर फिफ्थ वीडियो वेर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड वाइकेरियस लायबिलिटी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड मेनी ऑफ अस गेट कंफ्यूज इन अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। ठीक है, in this video I'm going to help you out कि you are not required to get confused at a very crucial front। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा and you'll get to understand every small detail about vicarious liability and मेरी गारंटी होगी कि आपको vicarious liability में अगली बार कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, पहले समझते हैं व्हाट इज दिस वाइकेरियस लायबिलिटी। सो वी ऑल अंडरस्टैंड इन द लॉ ऑफ टॉर्ट देयर इज अ लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, ए इज कमिटिंग रॉन्ग टू मिस्टर बी, देन मिस्टर ए इज लायबल, मिस्टर सी उस बात के लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन called vicarious liability. Now, what is the meaning of this vicarious? I'm sure all of you understand that in a movie like DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, when you watch that movie, और वहां पे अमरीश पुरी एक डायलॉग बोलता है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और जैसे ही अगेन से सिमरन के पापा ने बोला कि बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पूरे अगेन से हॉल के अंदर सब लोगों को लगा कि हमारे पापा ने ही हमको बोला कि जा जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनो, सो दैट फीलिंग इज कॉल्ड वाइकेरियस फीलिंग। Someone is gaining benefit and from there you are getting happiness. Someone is happy, you are getting happiness out of it. That is called vicarious. And वहां से पढ़ा था vicarious liability, that is called you have not done wrong but you authorize someone to do some activity। ठीक है, और on your behalf someone is doing it और उसने गलती करी, so that means you are liable। okay, so that is called vicarious liability। समझ आया? very good। so being liable for an act you have not committed, but you have not done it on your own, but you have authorized someone to do it, or someone has done on your behalf। या तो आपने किसी को ऑथोराइज किया है या आपके बिहाफ में किसी ने वो काम किया है, देन यू आर लायबल। ठीक है, देन यू आर लायबल, दैट इज कॉल्ड वाइकेरियस लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, ए has a driver called C. He negligently drive his car into B. ठीक है, now C is liable for the negligent act, but A is also liable because A मतलब is the owner, is a master of C। okay, so thereby B can put a claim, B can put a blame on C as well as A, and A has to pay money, A has to pay damages, C has to pay damages। is that very clear? great। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, so when does vicarious liability arises? vicarious liability arises in two cases। ठीक है, primarily you can say one in a master servant relationship and other is in a principal agent relationship। ये दोनों अलग अलग रिलेशनशिप है, पर दोनों एक तरीके से vicarious liability arise कर सकते हैं। ठीक है, so you may possibly wonder, sir what is master servant relationship? I'm sure आपको पता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। so servant is basically under the complete control of master, like employee is under complete control of employer, then that is you can say a kind of master servant relationship। ठीक है, we will see, ठीक है, we will see in detail कि what are the tests we have to apply in a master servant relationship। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर आपने आपके दोस्त को बोला है कि भाई एक काम करना, मेरे लिए है ना मतलब रास्ते में से पिज़्ज़ा लेके आ जाना, सो क्या आपका दोस्त, ठीक है, आपका लेकिन से सर्वेंट बन रहा है, क्या आपका दोस्त आपका एजेंट बन रहा है? ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा, हम देखेंगे उसको। सो सबसे पहले चीज समझते हैं मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, उसके बाद हम समझेंगे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, और हम ये देखेंगे कि क्या क्या एसेंशियल चीज है वाइकेरियस लायबिलिटी टॉर्ट में प्रूव करने के लिए। दो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज, tort must be committed by either the servant or the agent। that's the first thing। ठीक है, and number two, it must be done, ठीक है, in the course of employment। course of employment में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, so these are the critical issues which we have to deal with to understand this vicarious liability in great detail। चलिए समझते हैं।
सबसे पहला चीज़ कि भैया ये मतलब जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है वो किसने किया होना चाहिए. इट हैज़ टू बी डन either by servant or either by the agent. So first let us understand who is a servant. Servant is anybody who is employed by another to do the work, ठीक है, अंडर द डायरेक्शंस एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन. सो मास्टर के कंट्रोल में, मास्टर के डायरेक्शन में किसी भी बंदे को अगर हम हायर करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, देन दैट पर्सन विल बिकम अ सर्वेंट. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर. सो मास्टर is liable for the act of the servant. ठीक है, so to prove that master is liable, so we must prove that there was a master servant रिलेशनशिप. बहुत बार ये प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है कि ये मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है कि नहीं. ठीक है, अगर ये प्रूव कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा. सो देयर हैज टू बी सम मेथड टू प्रूव इट. यस और नो, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स. कभी कभार दिक्कत हो गई कि क्या उसको हम वी कैन से मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बोलेंगे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने अपने दोस्त को बोला ये मतलब यू आर वाचिंग इंडिया वेस्ट इंडीज मैच, ठीक है, एंड यू आर वी कैन से इन अ गुड मूड एंड यू से कि एक काम करते चलो लेट्स एंजॉय पिज़्ज़ा. ठीक है, एंड यू आस्क योर फ्रेंड टू ब्रिंग दैट पिज़्ज़ा कि एक काम का दोस्त ये ले पैसा और पिज़्ज़ा लेके आ जा. क्या आपका दोस्त मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में है क्या इसके अंदर? ठीक है, चलिए समझते हैं उसको. ठीक है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में होने के लिए दिस आर दी टू टेस्ट टू बी अप्लाइड. ओके, दिस आर दी टू टेस्ट टू बी अप्लाइड. विच आर दोस टू टेस्ट? नंबर 1, हायर एंड फायर टेस्ट. ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट मीन्स मास्टर कैन हायर समवन एंड मास्टर कैन फायर समवन. मास्टर इज अ पे मास्टर. ठीक है, मास्टर इज अ पे मास्टर. सो एज अ पे मास्टर ही हैज अ कंट्रोल, ही हैज एन ऑथोरिटी ओवर सर्वेंट. That is number 1. So that means he has a power to employ, he has a power to dismiss a person. ठीक है, that is number 1. So in the case of your friend, when you are asking your friend to bring pizza for you, ठीक है, that means do you have a power to remove him? Do you have a power of hiring and firing him? Obviously no. Obviously no. Okay, so that is not acceptable. Number 2, direction and control test. ठीक है, it means M, that is master, he is entitled to give binding orders. ठीक है, master is entitled to give binding orders, so thereby servant is required to follow those binding orders. ठीक है, so if you can say someone is giving binding order, ठीक है, then that person will be termed as a master. Okay, so this is very important. ठीक है, so how to do it, what to do it, है ना, what not to do it, all those binding orders are provided by the masters. ठीक है, then that's a master servant relationship. So we just saw that you are asking your friend to go for, you can say bring pizza for you. Now that is not master servant relationship because you are not giving any direction, you don't have any control on it. ठीक है, so that is how the scenario is. However, there are tricky area in the master servant relationship. Sometimes we see it is a master servant relationship, but in reality it is not. So for example, you ask someone, you can say you ask a plumber in your home to fix a certain thing. ठीक है, so plumber coming to your home, electrician coming to your home, giving a very specific service, so that is an independent contractor, is not a servant. You ask someone from urban clap, ठीक है, आप उसको अपॉइंट करते हो, so that's an independent contractor. You ask someone on Ola or Uber, that's an independent contractor. Okay, so that person is not your servant. You are not master of that person. He is an independent contractor. That is very important. Okay, ठीक है, so they don't work for anybody in particular. They are employed for that specific work only. Okay, so you have to understand it is not a master servant relationship. So that's the first confusion you get कि क्या ओला के ड्राइवर को आपने रखा है या उबेर को ड्राइवर को आपने एक से रखा है, क्या वो बंदा आपका सर्वेंट है? Obviously no, he is an independent contractor. Is that very clear? Great. ठीक है, चलिए, great. Then the next point is called who is agent. Agent is a representative. ठीक है, remember, he is not basically a kind of, let's say, employee or a servant. He is basically a representative. ठीक है, for example, you wanted to sell your car. You employed a car agent, asking him कि भाई मेरी कार बेच के देना, and once you sell that car, I'm going to give you commission. That is called agent.
Okay, that is called agent. Okay, so agent is a representative who acts on behalf of another person. So every act of agent is viewed from the perspective of the principal. Okay, every act of agent will be viewed from the perspective of the agent. Okay, so you employed a car agent, so car agent goes out and sell matlab commits to a lot of people about the car. Okay, then that is your agent on behalf of you. He is committing a lot of things to the other people. So you are principal and that person is an agent. LIC agent, car salesman, these are the people who are agent. Okay, so that's the first thing you have to establish in the tort of vicarious liability, whether a person has a master servant relationship or a principal agent relationship. That's the first thing. अगर वो एस्टेब्लिश कर दिया, देन कम्स अ नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, कि क्या वो बंदे ने गलती करी. ठीक है, तो वो क्या उस समय पे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं. ठीक है, ऑब्वियसली यू कांट एम्प्लॉय अ पर्सन फॉर 24 आवर्स, दैट इज रियली इम्पॉसिबल. कि वो भी आदमी जब भी अपना कोई पर्सनल काम करता है तभी भी आप बोलो कि नहीं वो मतलब मास्टर का ही काम कर रहा है या यू कैन से प्रिंसिपल का ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, सो देयर बाय वी हैव टू अंडरस्टैंड इन व्हाट सिनेरियो, in what situation we will term that it is done under the course of employment and when it is not under the course of employment. ठीक है, बट सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई करना whether that relationship is established or not. Which relationship? Master servant. Which is a second relationship? The second relationship is called principal agent. ठीक है, generally in the partnership scenario, when there is a partnership firm is available, in the partnership firm, ठीक है, all you can say partners are, you can say, having a mutual agency. So let's say there are three partners ABC. A carries out something wrong activity under the partnership act. ठीक है, during the partnership activity, so then B and C are liable, ठीक है, for the wrong done by A. Okay, so that's how the mutual agency is coming into picture. So what is this course of employment? देखिए दोस्तों, first thing you have to establish the relationship. The second thing you have to establish is the course of employment. Okay, first thing you have already established. Now we come to the second part, which is master and principal are liable for the acts done by their servant or agent respectively under the course of employment. समझिए दोस्तों, ये दोनों चीज होनी चाहिए, ये दोनों साथ में होनी चाहिए. द कंडीशन अप्लाइड इज एंड नॉट और. Okay, so there is a relationship called master servant and the act must be done under the course of employment. ठीक है, so दोस्तों, when do we say the act was done under agency, when we say act is done under the course of employment, there are 2 points to be made here. One, the act done is wrongful act which is authorized by master or the principal. Now this is very easy. It is an authorized act to be done in a wrongful manner. ठीक है भाई, मास्टर नहीं बोल के रखा है कि जा उसको ठोक दे. ठीक है, मास्टर नहीं बोला है कि जा यू कैन से वहां पे वो गलत काम कर दे. सो एक्ट इज डन इज wrongful act which is authorized by master or the principal, which is very easy to identify. The next point is act done is lawful but is done using a wrongful and unauthorized mode. ठीक है, गलत तरीके से और अनऑथोराइज वे में काम करा गया है. सो विच मीन्स कोई ऑथोराइज एक्ट इज डन इन अ रॉन्गफुल मैनर इज अ मोस्ट ट्रिकी एरिया. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन ग्रेट डिटेल इन अ मिनट. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, ए आस्क्स हिज ड्राइवर बी टू रन हिज कार इनटू सी. ठीक है, ए ने बी को बोला कि जा सी को ठोक दे. ओके, सो क्या ए लायबल है? हाँ, ही हैज ऑथोराइज्ड अ रॉन्गफुल एक्ट. A has authorized his, you can say, servant to do a wrongful act. So that comes here number one. So that's an acceptable thing. Number two, A asks his driver B to pick him up from the airport. On the way to airport, B negligently drives his car into C and breaks his leg. Is A liable? Yes, A liable. क्या हुआ? He was authorized to do one particular activity. कि क्या? एयरपोर्ट पे लेने आओ भैया. When you are coming for to you can say pick your boss at the airport, ठीक है, you can say drive in a negligent way and thereby you are hitting someone.
सो दैट मीन्स यू आर लायबल बट योर बॉस इज ऑल्सो लायबल. ठीक है, योर बॉस इज ऑल्सो लायबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड नंबर थर्ड, ठीक है, ओके, now why your boss is liable? Because you were doing that negligent act in the course of employment. ठीक है, you were driving to pick up your boss. So when you were driving to pick up your boss, you are under course of employment. ठीक है, another example. ठीक है, A appoints B as his agent to negotiate a deal for him in some place in London. ठीक है, during the negotiation B fails to look at the entire contract and negligently accepts loss making proposition. B accepts loss making proposition. Can A say that, look, I'm not binding whatever is agreed by B, I'm not going with it? Can A say so? No. A has appointed his agent. Whatever agent does, right or wrong, A is liable, ठीक है, for all the commitment done by B. Okay, so here you can say A is bound by all the contract. Okay, so here we come to this interesting point called authorized act done in a wrongful manner. Remember, authorized act is itself is wrong, वो तो बहुत easy pick-up है. ठीक है, बहुत easy है, आसानी से निकाल सकते हो. जो problem है कि भैया authorized act done in a wrongful manner, that's a big question, that's a big challenge we have to identify. How do we identify? Then possibly you can apply 2 tests. ठीक है, 2 टेस्ट अप्लाई करके आप देख सकते हो कि क्या ये सही है कि जो बंदे ने ऑथोराइज एक्ट किया, क्या उसने रॉन्गफुल वे में किया. ठीक है, ये समझना जरूरी है. ऑथोराइज एक्ट डन इन अ रॉन्गफुल मैनर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. सो टेस्ट नंबर 1, when the injury causing act was done, had he stopped doing the authorized act? अगर किसी बंदे को काम दिया गया है और वो जब गलत काम कर रहा है तो क्या उसने वो काम करना बंद कर दिया, ऑथोराइज एक्ट उसका वहां पे रुक गया? ये समझने की कोशिश. चलिए देखते हैं, है ना. ए का ड्राइवर बी है ना. ए ने बी को वी कैन से, एंड उसकी वाइफ ए के ऊपर आरोप लगा रही है कि भैया ए तुम्हारा आदमी है ना, तुम्हारा एम्प्लॉई मुझे परेशान कर रहा है. नाउ whether that person is an employee at that point in time, obviously no. ठीक है, he stopped doing that authorized act. When he stopped doing that authorized act, ठीक है, so that means it is only an issue between B and his wife. ठीक है, Mr. A is not at all connected, so thereby Mr. A is not liable at all. Mr. A is not liable at all. ठीक है, वापस समझते हैं. एक और केस. A's driver B, while driving A's truck from X to Y, stops to get fuel and beats the filling station operator. ठीक है, is A liable? Now the point here is very interesting, है ना. आप उसको थोड़ा लॉजिकली समझे तो चलिए देखते हैं. मानो A एक स्कूल का बस ड्राइवर है. ठीक है, स्कूल का बस ड्राइवर, ठीक है, कहीं पे जाता है और मतलब पेट्रोल भरवाता है. पेट्रोल भरवाने के टाइम पे he can say ends up, he can say doing some wrong activity. He started to fight with someone. ठीक है, now on what ground is fighting is very important. ठीक है, अगर वो फाइट अपने नाम पे कर रहा है, ठीक है, अपने बलबूते पे कर रहा है, ठीक है ना, तो अलग बात है. बट ही इज फाइटिंग, है ना, फॉर कि भाई वो जो सामने वाला बंदा है ना, उसने सही तरीके से पेट्रोल नहीं भरा, उसने सही पैसा नहीं लिया. ठीक है, अगर ऐसा सब कुछ किया और उसकी वजह से उसका झगड़ा चालू हुआ एंड ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, देन दैट ड्राइवर is under the employment. He's authorized, he's doing authorized act, but he's doing that in a wrongful manner. So is A liable? Yes, in that case he's liable. Okay, ठीक है. चलिए एक और टेस्ट देखते हैं. ठीक है, पहला टेस्ट क्या था? जब वो गलत काम कर रहा था तो क्या उसका ऑथोराइज एक्ट वहां पे रुक गया? पहले केस में जब वो बीवी को मारने लगा तब वो रुक गया. दूसरे केस में वो पेट्रोल भरवा रहा था, पेट्रोल भरवाने के टाइम पे जब एक्टिविटी कर रहा था उस समय पे उसका काम चल रहा था. चालू काम में उसने किसी के साथ झगड़ा किया. ठीक है, चालू काम में झगड़ा किया, देन इट इज टर्म्ड एज, यू कैन से, ही इज ऑथोराइज्ड to do that activity but in a wrongful manner. So that means A is liable at that point in time. ठीक है. Now the second test we apply is, can the injury causing act be completely carved out from the authorized act? क्या उसको हम पूरा का पूरा authorized act में से बाहर निकाल सकते हैं? The answer, है ना, is very interesting, है ना. ये समझना बहुत जरूरी है ना. क्या हम उसको अलग देख सकते हैं?
For example, A goes to hotel where the cleaning lady C comes to his room. ठीक है, and while cleaning the room, C steals A's laptop. Is the hotel owner liable? Now it is very impossible for us to carve out the activity of C, है ना, कि भैया C ने चोरी करी है, वो हमें अगेन से आइडेंटिफाई करना है. तो क्या हम होटल ओनर को लायबल ठहरा सकते हैं चोरी करने के लिए? नाउ देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. ठीक है, देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. वन वे इज बेसिकली, है ना, कि भैया होटल प्रीमाइसिस में कौन घुस सकता है? होटल प्रीमाइसिस में ऑथोराइज पर्सन ही घुस सकता है. स्पेशली होटल रूम में कौन जा सकता है? ऑथोराइज पर्सन ही जा सकते हैं. ये सुनो, और वो ऑथोराइज पर्सन ने अगर गलती करी तो क्या होटल ओनर ने गलती करी? हाँ, बात तो सही है. ये सुनो, ठीक है, बात तो सही है. However, in a let's say a kind of scenario कि भाई कोई ऑथोराइज पर्सन कहीं पे एंटर कर रहा है और उसने गलती करी, एंड इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल फॉर अस टू carve out that activity separately. Carve out separately कैसे कर सकते हैं? There are CCTV camera kept. Yes or no? CCTV camera are kept in the hotel. ठीक है, लेडी जा रही है अंदर क्लीन करने के लिए. There are CCTV camera. She comes out with the laptop bag, and then you can say hotel owner, you can say immediately catches that person and says कि इस बंदे ने चोरी करी है ना. ऐसा अगर प्रूव कर ले होटल ओनर, ही सपोर्ट कर ले, तो होटल ओनर उस समय पे लायबल नहीं है. Yes or no? पर अगर आप कार्व आउट नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप उसको अलग से सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एंड व्हेन इन अ होटल, ठीक है, ओनली ऑथोराइज पर्सन्स आर एंटर्ड, होटल गिव्स दैट काइंड ऑफ पावर, होटल गिव्स दैट काइंड ऑफ सेफ्टी टू द पीपल. ठीक है, तो उस समय पे होटल ओनर लायबल होगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. सो दोस्तों, चलिए समझते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा कि वाइकेरियस लायबिलिटी को किस नजरिए से देखा जाएगा. देखते हैं. Ganesh gives his car to repair to Excel and Gear Garage. One day, Jatin, an employee of the garage, takes the car out of the test drive. While doing so, he injures a pedestrian because of negligent driving. Who is liable? Ganesh, Jatin और garage? कौन liable है? ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि भैया गणेश ने अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए गराज को दे दी. सो दिस इज गणेश. ठीक है, गणेश ने अपनी कार दी गराज वाले को. गराज का एम्प्लॉई है जतिन. ठीक है, जतिन ने गलती करी. अभी वो कार किसके पास है ना, अभी कार है गराज के पास. सो इज द ओनर ऑफ द, मतलब सिनारियो, इट इज द गराज. क्या जतिन ने निग्लिजेंटली काम किया, उसके लिए गराज रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निग्लिजेंट एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, हु विल बी हेल्ड लायबल? ठीक है, मास्टर इज लायबल. सो गराज इज लायबल बिकॉज ऑफ vicarious liability. So answer would be Bombay. Garage is liable. ठीक है, obviously गणेश liable नहीं है. हाँ, जतिन liable है. ठीक है, जतिन liable है. प्रिंसिपल vicarious liability का था, तो हमने बोल दिया कि yes, vicarious liability के मुताबिक गराज is liable. ठीक है, एक और देखते हैं, बहुत ही मजेदार सा केस है, ध्यान से देखना. Master is liable for the acts of his servant in the course of employment. Nathu is a truck driver for Poncho Transport Company. Nathu is given assignment for delivering goods from Delhi to Mumbai. While on his way to Mumbai, Nathu gets off the highway to eat his lunch. ठीक है, starts refueling truck at the next door of the petrol pump. While at the petrol pump, he has a huge fight with the attendant and wrongly accuses him of being a thief in front of all the waiting crowd. सभी waiting crowd के ऊपर वो किसी को डिफेम कर रहा है, किसी को बोल रहा है कि वो चोर है. ठीक है, द पेट्रोल पंप अटेंडेंट sues पोंचो ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द डिफेमेशन. विल ही सक्सीड? इंटरेस्टिंगली ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे जब नाथू ने, है ना, उस बंदे को डिफेम करना चालू करा, उसके बारे में बुरा भला बोलना चालू करा, क्या उस समय पे वो ऑथराइज एक्ट कर रहा था? ऐसे देखा जाए तो भैया वो बंदा, है ना, अपने एक से दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था. ठीक है, ट्रक लेके जा रहा था, दिल्ली से बॉम्बे ट्रक चला के लेके जा रहा था, बीच में ब्रेक लिया, खाना खाने के लिए रुका. सो विच इज ऑथोराइज एक्ट है, विच इज ओके. ठीक है, अब क्या डिफेमेशन करना ऑथोराइज एक्ट है? ऑब्वियसली नो. उसको बोल के रखा होगा कि भाई देख, तू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, प्रॉब्लम मत करना, झगड़ा मत करना, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, दोस काइंड ऑफ थिंग. यस और नो? विच इज नॉर्मल, विच एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, कि भैया यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अवर वर्क एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंडल्ज इन टू एनी रॉन्ग एक्टिविटी. यहां पे नाथू ने
किसी को डिफेम करना चालू करा. डिफेमेशन कैन बी कार्व्ड आउट from the given scenario. Let me give you another example which gives you easy मतलब connection. For example, you are मतलब इन जो भी स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल में है ना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है. स्कूल के टाइम में एक एम्प्लॉय ने अपने इंस्टाग्राम पे जाकर है ना किसी बंदे को है ना कुछ बुरा भला लिखना चालू कर दिया. He writes something wrong there, something you can say bad about it and defames that person. ठीक है, कब किया उसने? स्कूल के टाइम के दौरान किया. यस नो, क्या स्कूल रिस्पॉन्सिबल है उस समय पे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो बंदा जब वो वहां पे इंस्टाग्राम पे कर रहा है अपने अकाउंट से कर रहा है, अपने बिहाफ में कर रहा है, स्कूल के बिहाफ में नहीं कर रहा है. यस नो, सो दैट मीन्स वहां पे वो बंदा अकेला रिस्पॉन्सिबल है, आपकी स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इस केस में भी पोंचो ट्रांसपोर्ट कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो petrol pump attendant will fail since Poncho's actions are not connected with the authorized act and thereby Poncho Transport Company is not responsible. Is this very clear? ठीक है, वापस समझिए इस बात को. हमेशा याद रखने का तरीका कैसे है ना, जब भी आप ये ट्रांसपोर्ट वाली दुनिया के ऊपर बात करते हो तो स्कूल वाला याद करिए कि अगर आपका स्कूल का ड्राइवर स्कूल बस जब आपको लेने के लिए निकलता है, ठीक है, तब भी वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है. उस समय पे उसने गाड़ी चलाते किसी को निग्लिजेंटली ठोक दिया, ठीक है, तो भैया यू कैन से स्कूल रिस्पॉन्सिबल है. गाड़ी चलाने के टाइम पे है ना, गाड़ी चलाने के टाइम पे उसने कहीं पे ब्रेक लिया एंड ही इज लेट्स से पुटिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, डिफेमिंग समवन ऑन द चाय की लारी, ठीक है, तो उस समय पे स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, फिर आपको कलेक्ट कर रहा है, वापस लेके जा रहा है. ये सुनो, आपको जब कलेक्ट कर रहा है, क्लास में बच्चे मतलब बस में बच्चे बैठे हैं, उनमें से किसी बच्चे को वो बुरा भला बोलता है तो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है? हाँ है. ठीक है, क्योंकि जब वो लेके जा रहा है उन्हीं बच्चों के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है. उनके बारे में कुछ बुरा भला बोला तो ही इज अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. व्हेन ही इज रिटर्निंग बैक टू द स्कूल, ठीक है, रास्ते में निग्लिजेंटली ड्राइव किया तब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हाँ है. ठीक है, फिर आपको स्कूल को ड्रॉप किया, देन वंस अगेन आपको स्कूल से लिया, आपको घर पे छोड़ने जा रहा है. ठीक है, उस समय पे भी वो लायबल है. आपको छोड़ दिया एंड व्हेन इज रिटर्निंग एंड टेकिंग द स्कूल बस एट द स्कूल, still at that point in time he is under this entire you can say course of employment even while returning. ठीक है, let's say he takes someone in the bus and he negligently drives, क्या कंपनी लायबल होगी? दैट स्कूल लायबल होगी? बिल्कुल लायबल होगी. ठीक है, बिकॉज ही हैज कमिटेड रॉन्गफुल एक्ट. ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं. प्रीतिका while returning to Lucknow from Delhi asks her driver Debashish to pick her from the airport at 7 a.m. प्रीतिका ने अपने ड्राइवर को बोला सुबह 7 बजे मुझे पिकअप करने आ जाना. इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शॉर्टेस्ट रूट टू द एयरपोर्ट, देबाशीष took a longest route via highway to enjoy the early morning breeze. ठीक है, देबाशीष is so engrossed in observing a group of girls passing by that does not see the elderly man crossing the road. तो वो कहीं और देख रहा था, ठीक है ना, और उसने एक एल्डरली मैन को ठोक दिया. The old man sues प्रीतिका for damages. क्या प्रीतिका लायबल है? देबाशीष जब प्रीतिका को लेने गया, ठीक है, सो क्या देबाशीष कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है? हाँ है, बिल्कुल कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है. ठीक है, उसको बोला गया था कि शॉर्टेस्ट रूट ले, जल्दी पहुंच जाना, बट स्टिल ही टुक द लॉन्गेस्ट रूट. ठीक है, तो क्या उसने गलती करी? हाँ, ही हैज डन ऑथराइज्ड एक्ट इन अ रॉन्गफुल मैनर एंड ही इज लायबल. देबाशीष इज लायबल एंड व्हेन द देबाशीष इज लायबल, ठीक है, प्रीतिका के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ तो प्रीतिका भी लायबल है. सो देयर बाय प्रीतिका इज लायबल सिंस देबाशीष वाज एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. So दोस्तों, vicarious liability is you can say is very comfortable now. I'm sure it is very comfortable for you to understand कि ये क्या आपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा था या नहीं. फॉर एग्जाम्पल एक और केस देखते हैं, बैंक के सर्वेंट का. ठीक है, कोई मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए का नेबर एक मिस्टर बी है. मिस्टर बी बीओबी में काम करते हैं, मिस्टर ए का अकाउंट बीओबी में है. मिस्टर ए ने लेकिन से मिस्टर बी को क्योंकि नेबर के नाते बोला कि एक काम करना, मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा देना. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसा दिया. ठीक है, एंड नाउ मिस्टर बी इज नॉट डिपॉजिटिंग दैट मनी इन द बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर ए. क्या बॉब इज लायबल you can say for the wrong committed by Mr. B to Mr. A?
The answer is no, because Mr. A has given money to Mr. B, ठीक है, Mr. A has given money to Mr. B, ठीक है, not as an employee of Bob but as a neighbor, ठीक है, so that was not under the course of employment. However, अगर बॉब कंपनी ने मिस्टर बी को बोला होता कि लोगों के घर घर जाकर तू पैसे कलेक्ट करके आ एंड फिर डिपॉजिट करना, एंड बॉब हैज ऑथोराइज मिस्टर बी टू कलेक्ट मनी फ्रॉम मिस्टर ए एंड नाउ बॉब हैज नॉट डिपॉजिटेड, देन बॉब इज लायबल. यस, देन बॉब इज लायबल. आई होप इट इज वेरी क्लियर. Great. ठीक है, so this is easy for you to understand. I hope this is a very comfortable idea. So my dear students, don't miss out to join this wonderful course by ProTalent. This is a crash course which has started from 1st of February. ठीक है, this is for those students who wish to commit themselves at least 5 to 6 hours on a daily basis and with a target कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करूंगा. ठीक है दोस्तों, दिस कोर्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of February. डोंट मिस आउट टू ज्वाइन नाउ. वी आर गोइंग एट अ वेरी गुड पेस. ठीक है, एंड इट इज वंडरफुल कोर्स अवेलेबल. ठीक है दोस्तों, इस कोर्स का परचेज करने का डायरेक्ट लिंक इज गिवन इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट. ठीक है, डोंट मिस आउट टू टेक इट. ओके, ठीक है, दिस कोर्स इज फॉर स्टार्टर्स. फॉर द ड्रॉपर्स वी आर गोइंग टू कम अप विद अ न्यू कोर्स, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.